Hi friends and dear colleagues, welcome to the crash course for SET exam 2020 for the subject of commerce. Today in this we're going to cover unit 9, that is legal aspect of business of paper 2. In this lecture we are going to see, as you know, there are many act in unit 9 and already we have done some of the act in earlier lectures. In this lecture, we are interested to do Sale of Goods Act 1930, which includes sale and agreement to sell, doctrine of caveat emptor, rights of unpaid seller, and rights of buyer. The Sale of Goods Act 1930, its origin you can find in the Indian Contract Act 1872 long back. In Indian Contract Act 1872, we are having many provisions. Out of that, section 76 to 123, that was relating to sale of goods and partnership, which were repealed after the Sale of Goods Act 1930 came into existence. The very important thing is, earlier there was no Sale of Goods Act 1930. All the provision, mostly major provision of this act, Sale of Goods Act, we are having in Indian Contract Act. But due to more number of transactions, due to more complications relating to sale of goods, Britishers have made separately this act as the Sale of Goods Act 1930. This act contains all the provisions relating to sale of goods, determination of price, then implied situation binding on the parties. There are some stipulation which are binding on the parties. Stipulation, we mean to say conditions, terms and conditions which are binding on the parties, but these conditions may be express or implied. So no doubt express stipulation or express terms and condition are always binding on the parties, but there are certain condition, there are certain stipulation, even though it is not expressed among the contract of buyer and seller, but still it is applicable because those are implied stipulation. What are those, we are going to see later. Then we are having provision relating to rights of an unpaid seller, time and place of delivery of goods, etc. So many provisions you will find here in the Sale of Goods Act 1930. As I told you, prior to this enactment, some basic provisions were a part of Indian Contract Act 1876. That is, I told you that which section, 76 to, yes, 76 to 123. ये याद रखना. Now, in section 2 of Sale of Goods Act 1930, there are some definitions given. Some of the most important definitions which I have covered in this lecture. One is buyer. Buyer means a person who buys or agrees to buy. See, very important in the Sale of Goods Act. This act says that buyer means not only the person who actually buys. Even if you are agreeing to buy some goods, then also you will come under the definition of buyer. आपको buyer ही बोला जाएगा. भले आपने बाय नहीं किया है, बट आपने एग्री तो किया बाय करने का, राइट. अच्छा, नाउ वन कीप वन थिंग इन योर माइंड, बायर का डेफिनेशन यहाँ पे ये है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर इन अदर एक्ट ऑल्सो. There may be some other act where buyer's definition will differ. Okay. Now seller means a person who sells or agrees to sell. Very simple definition. Okay. Then there is one more definition of delivery. It's important definition, may ask in the exam, upcoming exam. Delivery may be voluntary transfer of goods. Delivery means what? Voluntary transfer. मतलब जब हम voluntarily goods transfer करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि भाई डिलीवरी हुआ. ठीक है. डिलीवरी मे बी ऑफ थ्री काइंड्स in this way. It may be actual delivery, constructive delivery, or symbolic delivery. Right? What do you mean by actual delivery? When the goods are physically delivered to the buyer, it is called actual delivery. Physically delivery मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को
गुड्स डिलीवरी क्या उसके घर पे पहुंचा के दिया या इसके प्लेस पे, तो दैट्स एक्चुअल डिलीवरी, राइट. व्हाट इज अबाउट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? See, delivery is constructive when it is effected without any change in the custody or actual possession of the things delivered. That means यहाँ पे कस्टडी या एक्चुअल पोजीशन का चेंजेस नहीं होता है, जहां था वहीं पे गुड्स पड़ा हुआ है, बट ओनरशिप गेट्स चेंज, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज a warehouse holding the goods on behalf of A, right? warehousing, एक वेयर हाउस है जहां पे गुड्स पड़ा है लेकिन वो ए के नाम पर है. नाउ वेयर हाउस अग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टीज. अब ए ने और बी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा, कुछ एग्रीमेंट हुआ रहेगा, तो ए ने बोला ठीक है अभी वो गुड्स बी के बिहाफ पे रखो वेयर हाउस में. तो यहाँ पे देखो गुड्स इज स्टिल लाइंग ऑन दी इन दी वेयर हाउस, लेकिन वो पहले ए के नाम पे था, बट ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू टू सम ट्रांजेक्शन ना वो बी के नाम पे हो गया. तो यहाँ पे फिजिकल कस्टडी चेंज नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रहा है, एक जगह पे ही पड़ा हुआ गुड्स, तो इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय सिंबॉलिक डिलीवरी? तो सिंबॉलिक डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज डिलीवरी ऑफ अ सर्टेन थिंग, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ सर्टेन थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स. जैसे कि आपको कुछ टोकन दे दिया गया, आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया, राइट, एंड ड्यू टू चेंजेस ऑफ दैट एक्नॉलेजमेंट और टोकन goods gets delivered. For example, transfer of railway receipt, right? Suppose I have I want to transport some goods from one place to another place. That means I'm a seller and to buyer I am sending goods by transport receipt, by railway. So I will get railway receipt, राइट. रेलवे रिसीट का मैंने आगे इसका फॉर्मेट दिया हुआ नेक्स्ट स्लाइड में. तो रेलवे रिसीट इज नथिंग बट रिसीट इशूड बाय रेलवे अथॉरिटी सिंस यू हैव अपलोडेड गुड्स ऑन द रेलवे कैरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस. ओके, सो इफ दैट रेलवे रिसीट विच बिलोंग्स टू मी, राइट, क्योंकि मेरा गुड्स है मैंने उसको, अगर वो रेलवे रिसीट मैं ट्रांसफर कर देता हूँ किसी और पर्सन को, तो दैट पर्सन कैन टेक दैट गुड्स फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटी. दैट मीन्स यहाँ पे भी डिलीवरी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी. ये डिलीवरी किस वजह से हुआ? जस्ट बाय ट्रांसफरिंग दैट टोकन. इन आवर केस व्हाट इज द टोकन? रेलवे रिसीट. ओके, सो दिस आर थ्री काइंड्स ऑफ डिलीवरी: एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक. ओके, एक्चुअल में फिजिकली गुड्स प्लेस चेंज करता है, कंस्ट्रक्टिव में गुड्स प्लेस चेंज नहीं करता है बट उसका ओनर अलग हो जाता है, जैसे वेयर हाउस का था मैंने दिया था. सिंबॉलिक में क्या होता है कि गुड्स प्लेस चेंज करेगा और ओनरशिप भी चेंज होगा, बट हाउ? बिकॉज ऑफ सम टोकन ऑफ ट्रांसफर. लाइक हमारे एग्जांपल में था रेलवे रिसीट, इट मे बी डॉक रिसीट और इट मे बी वार फिंगर सर्टिफिकेट, इट मे बी एनीथिंग. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफ गुड्स. मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में, बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि व्हाट डू मीन बाय गुड्स और फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट गुड्स, ऐसा करके आता ही है. तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो ये हमने हाईलाइट किया, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स बोलते हैं. एवरी काइंड, किसी भी काइंड का हो, मूवेबल है तो वो गुड्स है. बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. देखो एक्शनेबल क्लेम और मनी ये भी मूवेबल ही होता है. हियर मनी मींस करेंसी, जो हमारे पास नोट होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो मूवेबल है, but that is specifically excluded from the definition of goods under the Sale of Goods Act 1930. okay, तो मनी को हम गुड्स नहीं बोल सकते even though it is movable, but it will not be called as a goods. And as far as actionable claims are concerned, actionable claims means चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब जिसके थ्रू कोई क्लेम अराइज होता है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी मूवेबल होता है, बट that is also excluded from the definition of goods. okay, so goods means any movable property will be called as a goods, but other than actionable claim and money. And there are certain other type of goods on the face that cannot be considered as a goods, but that is included specifically. definition में उनको specifically बोला गया है कि अगर ये सब goods रहेंगे तो इसको हम goods के definition में मिलेंगे, like stock and shares. देखो स्टॉक्स मतलब वही स्टॉक मार्केट में जो हम शेयर या स्टॉक का डीलिंग करते हैं, वो
तो उसको हम गुड्स बोलेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, खेतों में फील्ड पे क्रॉप्स लगा हुआ है, वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, गुड्स। ग्रास एंड, अच्छा ग्रास मीन्स नॉर्मल ग्रास जो हम समझते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी ग्रास विच इज सोल्ड, विच इज बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। एंड थिंग्स अटैच टू, ऐसी चीजें जो अटैच्ड है, कहाँ पे अटैच्ड है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, राइट, लैंड का वो पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्री, ट्री क्या होता है, लैंड से अटैच होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड। समथिंग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड, राइट, तो दोज थिंग ऑल्सो comes under the definition of goods. So thing attached to or forming part of the land, okay, and those things which is attached or part of the land which are agreed to be severed before sale, वो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको हम इजिली सीवियर कर सके, मतलब निकाल सके। अब जैसे ट्री है, अभी बहुत सारे ट्रीज कमर्शियल पर्पज के लिए होते हैं, लाइक फर्नीचर बनाने के लिए, वुड के लिए, तो दैट ट्री कैन बी सीवियर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हमको चलो ये 10 ट्रीज दे दो 1 लाख रुपीज में, ओके, तो आफ्टर सेल और आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट कैन बी सीवियर्ड, और बिफोर दैट इट कैन बी सीवियर्ड, ओके। So goods means any kind of movable property but not actionable claim and money. It also includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land. Okay. Then next thing is classification of goods. Goods can be classified into these parts. Three main parts: existing goods, future goods and contingent goods. Existing goods means the goods which are lying at the time of, which are exist at the time of making a contract. जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गुड्स अवेलेबल था, तो उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। फ्यूचर गुड्स मींस सच गुड्स विच इज नॉट प्रेजेंट, which is not exist at the time of contract of sale, that means it is going to be manufactured or produced or acquired in the future, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। अब जैसे कि भाई एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी जो फर्नीचर के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे भी ऐसा ऐसा फर्नीचर घर में बनवा के दे देना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट, बट गुड्स तो एग्जिस्ट नहीं है, बिकॉज वो तो कारपेंटर बाद में बनाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले हुआ, तो वो फ्यूचर गुड्स है। ना कंटिंजेंट गुड्स होता है, कंटिंजेंट गुड्स में सच गुड्स विच इज नॉट एट प्रेजेंट, डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाला है, बट एग्जिस्टेंस ऑफ दैट गुड्स डिपेंड्स ऑन सर्टन कंटिंजेंसी और सर्टन सिचुएशन, ओके। अब जैसे कि हमने बोला कि भाई हमको ये फर्नीचर बना के देना, प्रोवाइडेड अगर इसका प्राइस इतना रहा तो, राइट, अब उसका प्राइस जब उतना आएगा तभी वो गुड्स बना के देगा, अदरवाइज नहीं देगा, तो वो कंटिंजेंट है, विच इज नॉट येट फिक्स्ड, विच इज नॉट फिक्स्ड। वो गुड्स क्रिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं। नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर कैन बी explained, further can be classified in two part basically, actually यहाँ पे 3 लिखा है, actually specific and ascertain, in many books you will find the same thing, specific or ascertain, right, and unascertain goods, right. So what do you mean specific goods, what do you mean ascertain goods? So specific goods or ascertain goods means which can be identified and agreed upon at the time of contract of sale, मतलब ऐसा कोई भी गुड्स जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई एम सेइंग कि भाई मुझे ये कपबोर्ड चाहिए, पर्टिकुलर कपबोर्ड, राइट, तो वो स्पेसिफिक है बिकॉज गुड्स इज एग्जिस्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज आइडेंटिफाइबल, इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर गुड्स, तो ये स्पेसिफिक गुड्स और असर्टन गुड्स है। अनअसर्टन गुड्स क्या होता है? अनअसर्टन गुड्स मीन्स सच गुड्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बट कैन बी डिस्क्राइब्ड, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलता हूँ कि एक भाई मैं किराना शॉप में क्या बोला, मुझे 10 kg ऑफ राइस दे दो फ्रॉम दिस गनी बैग्स, ओके। अब 10 kg ऑफ राइस फ्रॉम दिस गनी, अब गनी बैग में तो 100 kg है, बट विच 10 kg आई नीड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड कि भाई हाँ मुझे इसमें इस गोनी में से दो, इस गनी बैग से दे दो, तो वो 10 kg कैन नॉट बी स्पेसिफाइड बट एनी राइस ऑफ 10 kg विल बी गिवन टू यू फ्रॉम दैट गनी बैग्स, तो वो अनसर्टन है, जहां पे असर्टेन नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। More definitions, two more definitions are there. One is document of title to goods,
and property. Now, as far as document of title to goods are concerned, it means any document which says that ownership of goods, by which we can understand, we can find, we can identify who is the owner of goods, right? Who is the controller of the goods. So that is document of title. So there are many documents which shows that, which evidence that particular person is the owner of that goods. ठीक है, तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसको टाइटल टू गुड्स बोलते हैं? तो उसमें बिल ऑफ लैडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आता है, वॉर्फ इंजर सर्टिफिकेट आता है, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस. ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बट एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स. मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो सके कि हु इज पोजेसर, हु इज कंट्रोलर ऑफ गुड्स, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज टाइटल टू गुड्स. अब ये कुछ एग्जांपल दिया, बिल ऑफ लैडिंग वगैरह, वेयर हाउस रिसर्च, ये मैंने लास्ट स्लाइड में उसके फॉर्मेट का मैंने पिक दिया हुआ है. आई विल शो यू इन द लास्ट slide. Okay, then come to the property. Property may be of three types. Property of goods means general property and special property, right? दो टाइप के प्रॉपर्टी होती है, जनरल और स्पेशल. जनरल प्रॉपर्टी मीन्स स्पेशली द पर्सन हु इज हैविंग ओनरशिप ऑफ दैट गुड्स. तो अगर आपका कुछ ओनरशिप में गुड्स है तो मतलब जनरल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ओनिंग सर्टन गुड्स इन द वेयर हाउस, तो वो गुड्स का मैं ओनर हूँ, राइट? तो मेरा जनरल ओनरशिप है. बट देर आर सम प्रॉपर्टी इन विच वी आर हैविंग स्पेशल इंटरेस्ट, राइट? स्पेशल इंटरेस्ट मीन्स लिमिटेड इंटरेस्ट होता है. इन केस ऑफ प्लेज, फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्लेज क्या होता है? द प्लेजी, दैट इज जो ट्रांसफरी होता है, उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी मिलता है. प्लेज एंड, आई थिंक यू नो अबाउट प्लेज एंड लीज वगैरह. अब एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लीज का लेते हैं. लीज में क्या होता है? दो पार्टी, एक लेसर और एक लेसी. लेसर मतलब वो अपना प्रॉपर्टी देता है as a rental basis for longer period of time, and lessee means the person who is taking that property for longer period of time. अब यहाँ पे जो lessee है, he is using the property for longer period of time. तो in this case, the lessee, that is transferee, gets special property and is having limited interest in the property. तो दो टाइप के प्रॉपर्टी है, एक जनरल ओनरशिप का और एक स्पेशल इंटरेस्ट का, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, where we can say what do you mean by sale and what do you mean by agreement to sell, because there are many questions which can be asked here कि by sale or agreement to sell का something, some any question may come from this definitely. Okay, now what do you mean by sale? So when ownership is transferred to the buyer, it is known as sale. अब ओनरशिप ट्रांसफर कौन किससे किसको होगा? तो सेलर के पास से जब बायर के पास गुड्स जाएगा और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम सेल बोलते हैं. ओके, एंड एग्रीमेंट टू सेल मीन्स व्हेन ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर, इट रिमेन्स विद द सेलर. मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल सेल गुड्स टू यू, आई विल सेल गुड्स टू यू, नॉट एक्चुअली सोल्ड. तो ये इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल. बट एक्चुअल सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? अगर ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया. ओके, तो दिस इज द मेन डिफरेंस. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है. सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड मीन्स ऑलरेडी डन. एंड एग्रीमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटरी होने वाला कॉन्ट्रैक्ट. It creates rights in rem. Rights in rem means once ownership get transferred from one person to other person, the person, that is buyer, who got ownership rights, he is having rights on goods exclusively from any other person in the world, whole world. मतलब उसके राइट्स में, उसका जो ओनरशिप मिला है ना, उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है. मीन्स ही इज गेटिंग राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इज नोन एज राइट इन रेम. एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? इट इज राइट्स इन पर्सनम. राइट्स इन पर्सनम मीन्स इवन दो एग्रीमेंट इज डन बिटवीन द पार्टीज टू सेल सम गुड्स, बट ही इज नॉट गेटिंग कंप्लीट राइट्स ऑन द गुड्स. व्हाई? बिकॉज ओनरशिप इज येट टू बी ट्रांसफर्ड, राइट?
तो उसका राइट्स कितना है, जस्ट राइट्स इन पर्सनम है. राइट्स इन पर्सनम मीन्स इवन एनी अदर पर्सन कैन हैव राइट्स ऑन दैट गुड्स बिकॉज टिल द डेट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर. तो उसको बोलते हैं राइट्स इन पर्सनम, रेम एंड पर्सनम. राइट सेल में ये एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि राइट इन रेम डील्स विद फॉलोइंग, तो सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बाय वगैरह वगैरह रहेगा. तो राइट इन सेल याद रखना, right in rem is related with sell and right in personam is related with agreement to sell. Now in case of sell, seller can sue for the price through the goods, right? seller क्या कर सकता है, अगर उसको प्राइस नहीं मिला है गुड्स का तो वो केस फाइल कर सकता है. ओके. एंड इन एग्रीमेंट टू सेल, सेलर कैन सू फॉर द डैमेजेस. देखो ये इंपॉर्टेंट चीज इज दिस, डैमेजेस एंड प्राइस थ्रू द गुड्स. सेल के केस में अगर सेलर को पैसे नहीं मिले उसके गुड्स के प्राइस, तो क्लेम कर सकता है. किस चीज का क्लेम करेगा, कि गुड्स का जो प्राइस रहेगा. बट इन एग्रीमेंट टू सेल व्हाट हैपेंस, अगर ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि वी विल सेल गुड्स टू यू ऑन नेक्स्ट मंथ, और बाद में अगर वो एग्रीमेंट नहीं हुआ तो वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है सेलर, क्योंकि गुड्स अभी तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है ना, सेल पूरा हुआ ही नहीं है, तो वो प्राइस, गुड्स का प्राइस नहीं मांग सकता है, वो क्लेम नहीं कर सकता. तो क्या क्लेम करेगा, he will claim for damages. Damages is the amount which is demanded by one party from other party in the court of law except price of the goods. Okay. Then seller resells the goods, the buyer can claim damages. अगर seller ने goods को resell कर दिया, किसी दूसरे को sell कर दिया, तो buyer can claim damages, right? Why? Because buyer है, suppose क्या हुआ, A ने B को goods sell किया but possession नहीं दिया, मतलब गुड्स सेलर के पास ही पड़ा है, लेकिन बायर ने उसको खरीद दिया, ओनरशिप उसके पास आ चुकी है. एंड आफ्टरवर्ड्स सेलर रीसेल्स द सेम गुड्स टू अदर पार्टी, तो वो केस में बायर के पास राइट्स है, वो तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है ना. वो बोल सकता है भाई तुमने मुझे सेल किया था तो गुड्स मुझे देना, आपने वापस से रीसेल क्यों किया, राइट? तो ही कैन क्लेम डैमेजेस. बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, रीसेल द बायर कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस, राइट? अगर बायर रीसेल करता है तो ही वो डैमेजेस मांगा जा सकता है, अदरवाइज नहीं मांगा जा सकता है. ओके. इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, द बायर हैज टू बेयर द लॉस. एक बात ध्यान रखना, अगर आपने सेल कर दिया है, राइट, मतलब बायर के पास ओनरशिप चली गई है, और अगर गुड्स का डिस्ट्रॉयमेंट होता है, मतलब गुड्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम एक्सीडेंट, तो बायर को ही लॉस बेयर करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज ही बिकम्स ओनर. And that is why whenever you are making any sale transaction, no, आपको ये कंफर्म करना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि if anything happens during the transport or transit, who will be responsible person. क्योंकि सेल मतलब हो सकता है कि भाई आपने बोला हो उसको कि नहीं हमारे घर तक लाके देना, तो ही हम उसका ओनरशिप लेंगे, अदरवाइज यू आर ऑन द लूजर साइड इफ समथिंग हैपेंस इन द ट्रांजिट. तो वही लिखा है यहाँ पे. एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि सेलर हैज टू बेयर द लॉस, सेलर को लॉस बेयर करना पड़ेगा अगर गुड्स का कुछ लॉस होता है, डैमेज होता है एक्सीडेंट के थ्रू. ओके. देन इफ सपोज बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, मतलब ए ने बी को गुड्स सेल किया और बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर क्या कर सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ लीन मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर, राइट? अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो सेलर क्या कर सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ लीन मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर. एंड एब्सेंस ऑफ लीन, लीन मीन्स कस्टडी होता है, लीन मतलब गुड्स की कस्टडी. तो अगर सेलर ने ऑलरेडी गुड्स ट्रांसफर कर दिया है बायर को और बायर हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब बायर भी पे नहीं कर सकता है, तो सेलर क्या करेगा, तो सेलर ये कर सकता है कि जो गुड्स है अगर वो डिलीवर नहीं हुआ है बायर को, तो वो गुड्स किसको डिलीवर करेगा, ऑफिशियल रिसीवर. हु इज ऑफिशियल रिसीवर, तो ये कोर्ट अपॉइंट करता है. ऑफिशियल रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट इन सच केसेस जहां पे सेलर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पोजीशन दिया है नहीं दिया है डिलीवरी, तो उसको उस केस में ना कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं. एंड टिल द केस गेट्स सॉल्व्ड, दैट ऑफिशियल रिसीवर विल बी द कंट्रोलर ऑफ दैट गुड्स. ओके. And in case of agreement to sell, what happens if the buyer becomes bankrupt before payment of price, seller may refuse the deal. तो इसमें सिंपल है क्योंकि गुड्स तो अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं एग्रीमेंट टू सेल में, राइट? तो अगर बायर पता चला सेलर को कि बायर पे बैंकरप्ट हो गया है और उसने पेमेंट नहीं दिया है,
तो भाई सेलर बोलेगा आई विल रिफ्यूज टू डिलीवर, मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा क्योंकि आप तो बैंकरप्ट हो गए, मुझे कहां से पेमेंट करोगे, ठीक है। नाउ ऑन द अदर साइड, इफ सेल के केस में सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो बायर कैन रिकवर द गुड्स। देखो सेलर ने बायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ओनरशिप गेट ट्रांसफर्ड, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, बट बायर गॉट्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स, तो ही कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, वो गुड्स को रिकवर कर सकता है, राइट। या तो सेलर से रिकवर करे, लेकिन वो अभी इन पोजीशन में नहीं क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट, तो उसका जो भी ऑफिशियल रिसीवर रहेगा उससे वो गुड्स वसूल करेगा। एंड इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बायर who has paid the price can only claim, अगर बायर ने पे किया है then only he can claim, otherwise he cannot claim anything from the seller. Okay, see these are certain format, as I told you, these are the nothing but टाइटल टू गुड्स, राइट। ये डॉक्यूमेंट टू टाइटल, ये डॉक रिसीट है जहाँ पे कंपनी का लोगो वगैरह, डॉक मतलब नॉर्मली जो शिप वगैरह, शिप पोर्ट पे होता है ना, गुड्स को जब हम लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, तो ये दिखाना पड़ता है, वो इशू करता है डॉक वाला। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये रेलवे रिसीट है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हाँ अलग अलग सेंट्रल रेलवे का डिपार्टमेंट ने अलग अलग फॉर्मेट बनाया है, ओके। एंड ये बिल ऑफ लैडिंग है, सेम थिंग, पोर्ट पे शिप पे यूज होता है। और एक वॉर्फ इंजर सर्टिफिकेट होता है, विच इज वन काइंड ऑफ डॉक ओनर्स, जो डॉक पे काम होता है ना, एक्चुअली ये वॉफ होता है, एक वॉफ, वॉफ इज वन काइंड ऑफ पोर्ट, स्मॉल पोर्ट, जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई शिप, एक रिवर है उसके किनारे पे थोड़ा जगह है जहाँ पे एक पोर्ट का सुविधा दी जा सकती है, तो उसको वॉफ बोलेंगे, वहां पे वो सब अरेंज, तो वहां पे जो कंपनी है जो डील कर रही है ट्रांसपोर्ट से, they will issue one certificate regarding what, regarding any person who want to transfer through any ship or anything in that way, right. So that will also be act as a document of title to goods. Thank you, thanks a lot for listening me. Thank you. Now there is one more term of in sale of goods act 1930s, doctrine of caveat emptor. Caveat emptor is a fundamental principle to the law of sale of goods. Caveat emptor, basically it means caution buyer, that is let the buyer beware. Okay, now buyer beware means it is the duty of the buyer to be careful while purchasing goods of this his requirement, and in the absence of the inquiry from the buyer, the seller is not bound to disclose every defect in the goods of which he may be cognizant. It is simple meaning that if buyer is going to buy something, it is his duty while purchasing goods, he should inquire about the goods, whether he is having any kind of defect or not having any defect. If he is not demanding any inquiry from the seller, in that case, if something happens at later stage, buyer will be responsible, right. So caveat emptor says that buyer is always taken care of the goods while buying, otherwise he will be responsible. But there are certain cases where this doctrine caveat emptor does not applied. अब वो कौन से केसेस है जहां पे आप बायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते हो, तो देर आर मेनी केसेस, 6 केसेस आर देयर। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर सेलर ने कुछ गुड्स को मिस रिप्रेजेंट करके सेल किया हुआ है, तो इन दैट केस कैवेट एम्प्टर विल नॉट अप्लाइड, वहां पे सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब भाई सेलर ने कुछ अपना धांधली किया, भाई कुछ यहाँ से वहां गलत तरीके से गुड्स को प्रेजेंट किया बायर को, ऐसा है वैसा है, ये अच्छा पैकेजिंग करके बता दिया, नहीं ऐसा है, अंदर कुछ और माल है, तो इन दैट केस बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो वहां पे कैवेट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो सेलर नहीं बोल सकता अरे मैं क्यों पे करूं, ये तो कैवेट एम्प्टर है, बायर मस्ट सी द गुड्स, ओके। तो दीज आर द एक्सेप्शन। देन इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट है गुड्स में और उसको कंसील किया गया है, कंसील में छिपा देना, पर्पसली, इंटेंशनली, टू मिसगाइड द बायर, तो इन दैट केस कैवेट एम्प्टर विल नॉट बी अप्लाइड बिकॉज seller has done something wrong, okay. देन इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल, देखो कभी भी सेल के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पे सेलर गुड्स को डिस्क्राइब करता है और फिर बेचता है, तो माइट भी वो फोन पे डिस्क्राइब करे या पर्सनली मिले और बोले देखो भाई मेरे पास एक गुड्स है एट दैट प्लेस, वो इस तरह का है, वैसा क्वालिटी है, वैसा साइज है, वैसा कलर है, ऐसा है वैसा, मतलब उसने डिस्क्राइब किया। एंड
on the basis of description he sold the goods. And suppose at later stage if buyer comes to know certain defect which is not as per the description, in that case caveat emptor cannot be applied. तो simply अगर sale by description हुआ है तो caveat emptor will not be applied. In that case seller will be responsible and not buyer. Okay, same thing with sample, sale by sample. If sale is happening due to sale by sample, ऐसा होता है ना कि सैंपल भाई सेलर आता है एक सैंपल दिखाएगा आपको, बोलेगा देखो ऐसा गुड्स है, आई एम गोइंग टू सेल दिस गुड्स, विल यू बाय, और आपने ओके कर दिया. And after buying the goods you come to know that there are many defects in the goods which is supplied to you by seller. So in that case caveat emptor will not apply, seller will be responsible. In case of description and sale sample, there are some cases जहां पे गुड सेल किया जाता है डिस्क्राइब करके, पार्टली डिस्क्रिप्शन एंड पार्टली सैंपल. मतलब सैंपल दिखाएंगे और कुछ डिस्क्रिप्शन कर देंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है. क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आप सैंपल भी दिखाओगे तो भी समझ नहीं सकते. फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ. जो राइस होता है, वीट होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, जब इसकी सेलिंग होती है ना, जब सेलर आता है बायर के पास, तो ना वो एक छोटे से पैकेट में जस्ट 5-10-20 ग्राम का वो लेके आएगा, देखो डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ राइस, और दिखा के बोलेगा भाई देखो भाई ये कोलम चावल है, ये ऐसा स्मेल है, ये वैसा है. तो एक सैंपल भी दिखा रहा है और डिस्क्राइब भी कर रहा है. तो इन सच केस ऑफ सेल caveat emptor will not be applied. And last one is fitness for a particular purpose. It means if buyer has bought goods from seller for a particular purpose so that that purpose get accomplished, लेकिन वो पर्पस accomplish नहीं हो रहा है और वो पर्पस बायर ने सेलर को बताया था, राइट? तो सेलर ने बोला हाँ हाँ आपके हिसाब से जो आपने मुझे नीड दिया, अकॉर्डिंग टू दैट नीड इट इज द परफेक्ट गुड्स फॉर यू. ओके, एंड एट लेटर स्टेज बायर कम्स टू नो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दिस गुड्स इज नॉट फिट फॉर मी फॉर माई पर्टिकुलर पर्पस. तो इन दैट केस ऑल्सो बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. इन दैट केस caveat emptor will not be applied. Okay, there is one more topic, unpaid seller. Unpaid seller, who is unpaid seller? So it is given in section 45 of seller goods. Unpaid seller means any seller who has not paid fully or partly. उसने goods sell तो किया but उसको या तो पूरा पैसा नहीं मिला या तो part of the money is not received. So that person is known as unpaid seller. And since he is not paid fully or partly, he is having some rights. Okay, उसके पास कुछ rights है. What are the rights of an unpaid seller? We can see here against the goods. दो rights है, एक अगेंस्ट द गुड्स और दूसरा अगेंस्ट द बायर पर्सनली. ओके, तो अगर कोई भी सेलर ने गुड्स सोल्ड किया और उसको पैसे नहीं मिले बायर के थ्रू, पूरा या तो आधा जो भी है, तो वो केस में व्हाट राइट्स ही हैज, तो ही हैज सम राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. वो क्या क्या कर सकता है? तो ही कैन लीन द गुड्स. वो क्या कर सकता है कि गुड्स को अपने कस्टडी में ले लेगा. ठीक है, और अगर गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका और ट्रांजिट में है तो अनपेड सेलर कैन ऑर्डर टू स्टॉप दैट गुड्स इन ट्रांजिट. वो ट्रांजिट में रुकवा सकता है, उसके पास ये राइट्स है. ओके, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि भी अनपेड सेलर का कांटेक्ट हुआ रहेगा मतलब बायर से कि भाई गुड्स को मैं भेज देता हूँ इतने समय में, जस्ट मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसा. उसने ट्रांसफर नहीं किया तो वो रुकवा देगा गुड्स ट्रांजिट में. एंड रीसेल एज पर सेक्शन 54, unpaid seller is having right to resell the goods if he is not paid fully or partly or completely. तो ये against the goods है. Now there are some rights of unpaid seller against the buyer personally. अब वो तो गुड्स के लिए ऐसा कर सकता है बट बायर के खिलाफ क्या कर सकता है ऐसा सेलर? क्योंकि बायर ने पे नहीं किया ना, बायर तो he has promised to pay but he has not paid. तो what unpaid seller can do? तो he can repudiate the contract. Repudiate means contract can be cancelled. सेलर क्या करेगा, अभी बोल देगा बायर को भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, अभी पैसा भी नहीं मिलेगा, गुड्स भी नहीं मिलेगा. देन ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. राइट, वो बोलेगा भाई इतना गुड्स मैंने भेजा था ना तो इतना का पैसा मुझे वापस चाहिए. देन ही कैन फाइल सूट फॉर डैमेजेस ऑल्सो. डैमेजेस मैंने बताया अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स वो एक्स्ट्रा मनी भी मांग सकता है. एंड नॉट ओनली प्राइस एंड डैमेजेस, इवन बायर कैन फाइल केस अगेंस्ट द बायर फॉर द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. जो गुड्स का अमाउंट है, डैमेजेस, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी मांग सकता है. राइट,
So such kind of suit can be filed by the unpaid seller to the buyer personally. Then there are some rights of buyer. कुछ buyers के rights होते हैं in generally. तो buyer is having right to delivery. That means अगर उसने buy किया है goods और उसने अगर pay किया है तो उसका rights क्या है कि उसको delivery मिलनी चाहिए. Buyer can reject the goods if he finds some defect, otherwise no. ऐसे वो reject नहीं कर सकता है. Reject तभी कर सकता है if he comes to know there are some defect. Then repudiate, he can cancel the contract if he finds such kind of any kind of defect. Notice of insurance, buyer is having right to discuss about the insurance कि भाई इंश्योरेंस कितना है, कौन इंश्योरेंस का पे करेगा, सेलर और बायर. एंड इंश्योरेंस इज अप टू व्हाट पीरियड, मतलब कि टिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर और टिल द टाइम द गुड्स रीच टू हिज प्लेस और नो, वो इंश्योरेंस का उसका राइट्स है बायर का. Then buyer is having right to examine the goods before delivery is done, and buyer is having rights against the seller for breach. कोई भी अगर टर्म्स कंडीशन सेलर ने वायलेट किया कॉन्ट्रैक्ट का, तो बायर इज हैविंग राइट टू सूट फॉर डैमेजेस. बायर भी केस कर सकता है सेलर के खिलाफ बिकॉज सेलर हैज ब्रीच सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन. तो ही कैन सूट फॉर डैमेजेस और सूट फॉर प्राइस और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और सूट फॉर